Hello everyone. In this video, I am going to tell you about Middle Paleolithic culture of Europe. Middle Paleolithic culture of Europe. It's a short transitional period between Lower and Upper Paleolithic culture, and it is known as Early Cave period. Why it is known as Early Cave period? Because it was the period during which early human species started living inside the caves and rock shelters. That is why it is known as Early Cave period. Before that, during the Lower Paleolithic culture, human lived near the riverine sites, while during the Middle Paleolithic they started living inside the caves and rock shelters. That is why it is known as Early Cave period, while the Upper Paleolithic culture is known as Late Cave period. The main tradition of this culture is Mousterian culture, especially French Mousterian is the main tradition and reported for France, and while some local traditions were reported from various parts of the Europe, various countries of Europe like Russia, Germany, Italy, Belgium, Austria, England, Yugoslavia, Hungary, Greece, etc. And Middle Paleolithic culture is also reported from North Africa and Asia other than Europe. And the time period of Middle Paleolithic culture in Europe is from 1,20,000 years, or sometime it is written 80,000 years ago, because of the late emergence of the Middle Paleolithic culture at some places, and it ends at 35,000 years ago. Means your time range here, that is 1,20,000 or 80,000 to 35,000 years ago. That is, it begins from the end of wrist and to the and ends to the early womb. Means early womb glaciation तक ये पूरा चलता है, end of wrist से शुरू हो जाता है और early womb glaciation तक चलता है, जबकि कुछ साइट्स में ये early womb glaciation से ही start होता है Middle Paleolithic culture. Sites are La Maicoque, Le Mostia, La Quina, La Farace, and Molodova caves in Russia. Habitat is mostly cave sites and rock shelters. Evidences which are found from the Middle Paleolithic sites are scrapers, levelizing flakes, points, blood species, hand axes, Vasconian cleavers, denticulates, and notches. Wildflower pollens in soil with Neanderthal remains. Burial sites, habitation structures found at many sites. मीन्स जो मिडिल पैथिक जो टूल्स मिले हैं वो मोस्टली स्क्रैपर्स हैं, मीन्स साइड स्क्रैपर्स एंड एंड स्क्रैपर्स बोथ. लेवलाइजन फ्लेक्स मिले हैं जिसमें लेवलाइजन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है. लेवलाइजन पॉइंट्स मिले हैं, ब्लड स्पिजन मिला है जो कि लीव बाइफेशियल लीव पॉइंट है, स्पेशली फ्रॉम जर्मनी से मिला है, ये हंगरी जर्मनी साइड से मिला है. देन एचुलियन टाइप ऑफ हैंड एक्सेस मिले हैं. वेस्कोनियन क्लीवर जो स्मॉल क्लीवर्स मिले हैं कुछ साइड से जिसमें कि स्पेन से मिला है, तो ये वेस्कोनियन कहे गए हैं इन बोर्ड्स के द्वारा. फ्रेंकोइस बोर्ड्स ने इन्हें वेस्कोनियन क्लीवर कहा है. देन टेंटिकुलेट्स एंड नॉचेस मिले हैं, और जो निंडरथल रिमेन्स मिले हैं वो बरियल साइट्स में, वहां पर वाइल्ड फ्लावर पॉलन ग्रेन्स मिले हैं सॉइल में उसके साथ, और जो शो करते हैं मीन्स दीज बरियल विद द pollen grains and artifacts, it gives evidences of belief in afterlife. means they started believing in afterlife. वो ये विश्वास करने लगे थे कि सोल मीन्स लाइफ मीन्स डेथ के बाद भी रहती है, और इस तरह रिलीजन की शुरुआत हुई. मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मैजिक एंड रिलीजन एंड देयर इमोशंस फॉर एंड कंसर्न फॉर द डेड पर्सन. मीन्स फ्लावर को रिमेन्स के साथ मीन्स जो बरी करते समय उन्होंने निंडरथल बॉडीज के साथ फ्लावर्स रखा, और ये शो करता है कि वो कितना उनका अटैचमेंट होता था, इमोशनल जो उनका कंसर्न है वो डेड पर्सन के साथ, वो ये इन चीज़ों से पता चलता है. और उनकी जो आफ्टर लाइफ में बिलीव थी वो भी इससे पता चलती है, और यहीं से माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि यहीं से मैजिक और रिलीजन की शुरुआत हुई. कैनिबलिज्म के भी एविडेंसेस मिलते हैं, मीन्स एविडेंस ऑफ कैनिबलिज्म आल्सो फाउंड फ्रॉम मिडिल पैलोथिक साइट्स, एंड late middle paleolithic culture also give the evidence of the cave art. तो cave art के भी evidences मिलते हैं late middle paleolithic site से. And earliest evidence of cave bear cult, that is cave bear skulls with the Neanderthal remains,
found from many of the sites of Middle Paleolithic culture. And human were the mostly cave dwellers and hunter gatherers during this Middle Paleolithic period. और केव बियर कल्ट के पीछे ये माना जाता है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो केव बियर कल्ट है वो इसमें निएंडरथल्स का कोई रोल नहीं था। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये जो केव बियर कल्ट है ये निएंडरथल्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर जो केव बियर की रिमेन्स पाई गई हैं उनकी कुछ हड्डियाँ और उससे जुड़ा हुआ कुछ प्रतीक के रूप में ये कि वो कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे। पर बाद में ये माना गया कि नहीं, इसमें निएंडरथल पीपल्स का या निएंडरथल मैन का कोई रोल नहीं है। और ये जो क्योंकि केव में बियर रहा करते थे और फिर वहाँ पे निएंडरथल रहने लगे तो उसमें कुछ उनको उन्होंने मारा होगा और फिर उनके जो रिमेन्स वहाँ रह गए होंगे उसी को माना गया कि वो केव बियर कल्ट का रूप माना। लेकिन ये केव बियर कल्ट ना होकर ये नेचुरल वे में वहाँ पर ये रिमेन्स पाए गए हैं। And the human evolutionary stage during the Middle Paleolithic culture was Homo neanderthal, and while in Africa it was early sapiens. Means early Homo sapiens के remains मिले अफ्रीका से, लेकिन यूरोप में Homo neanderthal जो मैन है उसी के remains मिले हैं from most of the sites of Europe. Earlier, it was found that Neanderthals was the human evolutionary stage during the entire Middle Paleolithic. He was considered as the author of Middle Paleolithic and the man during the entire Paleolithic. But the recent researches proved that Neanderthals evolved from Homo erectus at a very late date, at a much later date. Than early sapiens, and so it can be said that the Middle Paleolithic shows mixed workmanship of early sapiens and Neanderthals. There is no evidence of Neanderthals in Africa. तो अफ्रीका में निएंडरथल्स माना जाता है कि निएंडरथल रिमेन्स मिले ही नहीं वहाँ की साइट से। तो इसका मतलब कि जो अर्ली होमोसेपियंस थे वो अफ्रीका में जो है वो निएंडरथल मतलब जहाँ पर यूरोप में निएंडरथल्स जो है वो मिडिल पैलेथिक कल्चर को इवॉल्व किए, और जो मिडिल पैलेथिक टूल्स है या पूरा कल्चर है वो निएंडरथल मैन के द्वारा डेवलप किया गया। और जबकि अफ्रीका में अर्ली होमोसेपियंस जो है वो जो है इस मिडिल पैलेथिक कल्चर में उनका योगदान है, उन्होंने इस कल्चर को डेवलप किया। ये माना जाता है कि जो अर्ली होमोसेपियंस हैं वो निएंडरथल मैन से उनका इवोल्यूशन पहले हुआ। जैसे कि अफ्रीका में होमो हाइडेलबर्गेंसिस से जो था वो अर्ली सेपियंस माना जाता है, और जबकि यूरोप में जो होमो इरेक्टस हैं वो इवॉल्व हुए जो अफ्रीका से होमो इरेक्टस के टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स वहाँ से माइग्रेट करके हमें यूरोप आए थे और फिर वहाँ पर होमो इरेक्टस स्पीशीज की इवोल्यूशन होता है, and then this Homo erectus evolved into Homo neanderthalensis in Europe. तो यूरोप में होमो इरेक्टस से डायरेक्ट होमो निएंडरथालेंसिस का इवोल्यूशन होता है, और यही होमो निएंडरथालेंसिस यूरोप में जो मेनी ऑफ द साइट्स मींस ऑल द साइट्स वी गेट द रिमेन्स ऑफ होमो निएंडरथल मैन। तो होमो निएंडरथल मैन जो है यूरोप में आपको जो author of Middle Paleolithic culture in Europe, it is Homo neanderthal man, while in case of Africa, it is early Homo sapiens, and they evolved at a much early rate than the Homo neanderthals in Europe. तो यूरोप में जो होमो निएंडरथल का इवोल्यूशन हुआ उसके बहुत पहले ही अर्ली होमो सेपियंस का इवोल्यूशन अफ्रीका में हो चुका था। तो इसलिए माना जाता है कि अफ्रीका में तो जो मिडिल पैलेथिक साइट्स मिलती हैं वहाँ पर जो टूल्स मिलते हैं उसमें अर्ली होमोसेपियंस का योगदान, उन्होंने ही उस टूल्स को बनाया है। जबकि यूरोप में जो भी टूल्स मिलते हैं जो भी कल्चर डेवलप हुआ इट वाज बाय द होमो निएंडरथल मैन। तो निएंडरथल्स अफ्रीका में उनके रिमेन्स मिलते ही नहीं हैं, लेकिन बाद में जेनेटिक स्टडीज के द्वारा ये पता चला कि जो अफ्रीकन रेस है और यूरोप उन दोनों में ही निएंडरथल्स के जीन पाए गए, और ऐसा अनुमान लगाया गया
कि ये निश्चित ही माइग्रेशंस की वजह से हुआ होगा कि जो अफ्रीका से ह्यूमंस यूरोप में आए और वहाँ पर यूरोप और एशिया में जो नियंडरथल मैन्स के साथ उनकी इंटरब्रीडिंग हुई होगी और फिर जो वो वापस अफ्रीका गए होंगे तो वो जीन्स उनके साथ रह गया। तो नियंडरथल मैन के जो जीन्स है वो अफ्रीका में भी इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो यूरोप और एशिया आने पर वो नियंडरथल मैन्स के साथ उनकी ब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग हुई होगी और जिससे कि मिक्स हो गया जीन्स and then the Neanderthal genes were also found in Africa, means Africa, Europe and Asia सभी जगह Neanderthal genes पाए गए। तो ये जेनेटिक स्टडीज के द्वारा हमें पता लगता है, लेकिन जो मिडिल पैथिक कल्चर साइट्स हैं वहाँ पर हमें जो रिमेन्स मिलते हैं वो अगर यूरोप के केस में माना जाए और एशिया के केस में माना जाए तो नियंडरथल मैन के मिलते हैं, जबकि अफ्रीका के केस में it is of early Homo sapiens. Traditions of Middle Paleolithic culture and especially यहाँ पर फ्रेंच मॉस्टेरियन एंड फ्रेंच माइकोकियन ट्रेडिशन की बात करेंगे। इन वेस्टर्न यूरोप, साउथ फ्रांस, इन डोरडोगनी वैली, two traditions were developed. Earliest was the Mycokian tradition, and the later tradition was Mousterian tradition. And these traditions were named by Francois Boards on the name of the sites La Mycoque and La Le Moustier. The earliest Middle Paleolithic tradition of Western Europe is the Mycokian tradition and was named after the site of La Mycoque. The time period of La Mycoque is 1,20,000 years to 80,000 years ago. It begins at the end of this, and the distribution is France. Site is La Mycoque. Evidences are which are found from this site La Mycoque are hand axes, plague tool-like scrapers. Plague tools present shows that it is branched out of the Acheulean tradition. Means जो lower Paleolithic का Acheulean tradition था, जो लेट लोअर पैलेथिक में एचुलियन ट्रेडिशन से ही इसका इवोल्यूशन हुआ है माइकोकिया ट्रेडिशन का फ्रांस में। ऐसा ये टूल्स के आधार पर हम कह सकते हैं। और लेवलॉइज प्लेट्स अर्लियर एब्सेंट बट फाउंड इन द लेट माइकोकियन। तो जो लेवलॉइजियन टूल्स हैं जो कि मिडिल पैलेथिक की पहचान माने जाते हैं, ये लेट माइकोकियन में पाए जाते हैं, पर अर्ली माइकोकियन में यहाँ पर जो लेवलॉइजियन प्लेट्स हैं दीज आर एब्सेंट। Mousterian tradition, it's also known as French Mousterian, and because ये फ्रांस में ही ये Mousterian tradition पाया गया और ले मॉस्टियर जो साइट है उसके नाम पर इसका Mousterian tradition नाम रखा गया by Francois Boards. And La Moustier is an archaeological site consist of two rock shelters, Pizec Le Moustier village in the Dordogne Valley, France, and a fossilized skull of Homo neanderthalensis was discovered from this site in 1908, first excavated by British Henry Christie and the Frenchman Edward Lortet in 1863. तो 1863 में जो है यहाँ पर सबसे पहले इसका एक्सकेवेशन हुआ हेनरी क्रिस्टी जो ब्रिटिश थे और फ्रेंचमैन एडवर्ड लॉर्टेट के द्वारा हुआ और एक ह्यूमन मतलब होमो निएंडरथालेंसिस की जो स्कल डिस्कवर की गई 1908 में डिस्कवर की गई ले मॉस्टियर से एंड द नेम ले मॉस्टियर and name Maustian tradition was given by Francois Boards on the name of site Le Moustier. The time period was of Maustian tradition. It ranges from 80,000 years ago to 35,000 years ago. Means end of Imian या अर्ली वूम से मिड वूम तक ये चलता है Maustian tradition. And the distribution is in the France in Western Europe, that is South France में ही especially Maustian tradition पाया जाता है। and ये जो डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पर ये साइट है ले मॉस्टियर, that is Dordogne district in Dordogne Valley of South France, Western Europe. The habitats are the rock and cave shelters, and the sites are La Moustier, La Puna, La Perasse, La Sepal Auctions, and Compic Renard. So these are the sites of the French Mousterian. The evidences which were found from these sites are large number of scrappers, both side and end scrappers, levelising plague, coins, and Neanderthal remains. These are found from the
Mostrian sites. Then the human evolutionary stage was Homo neanderthals, and economy was hunting gathering economy. The culture and society was this period was marked by the origin of religion with the supernatural beliefs and propitiation rites. So, जो burial practices they were also fine, and because of the presence of pollen grains along with the Neanderthal remains in these burial sites, it is found that they believe in afterlife, and that is why this period is marked by the origin of religion with the supernatural beliefs. Acheulean type of and cave bear cult is also found in most of the sites. That is why religion की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है. Acheulean type of indexes like chordates, ovids, scrapers, etc. are found. Scrapers, both type of end scraper and side scrapers are found from this side. Levallois points, denticulates, notches were the tools of this period. So along with the scrapers, hand axes, Acheulean type of hand axes, Levallois points, denticulates and notches were also found from these Mostrian sites. Mostly they live in the cave sites. Some habitation structures were also found. For example, in France में पावमेंट फ्लोरिंग पाई गई है ला पेरासे साइड से एंड पोस्ट होल्स पाए गए हैं कॉम्बेग्रेनाल से. तो इन फ्रांस पावमेंट फ्लोरिंग मींस स्टोन्स को फ्लोर में अरेंज किया गया है ला पेरासे साइड में ऐसा मिला है एविडेंस. और कॉम्बेग्रेनाल साइड जो एक केव साइट है यहाँ पर पोस्ट होल्स मिले हैं और इस तरह माना जाता है कि उन्होंने आर्टिफिशियल हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स को क्रिएट किया होगा. एंड दे मेक यूज ऑफ फायर. उन्होंने फायर का यूज किया. एविडेंस ऑफ कैनिबलिज्म और एक्सकार्नेशन इज ऑल्सो फाउंड. वहाँ पर कैनिबलिज्म मीन्स ह्यूमन को ही मार के खा जाते रहे होंगे ऐसा माना जाता है क्योंकि बहुत सारी ब्रोकन बोन्स मिली हैं होमो निएंडरथल्स की और उसी वजह से माना जाता है कि कैनिबलिज्म का वहाँ पर शुरुआत हुई होगी या ये प्रैक्टिस किया जाता रहा होगा. एक्सकार्नेशन भी कह सकते हैं कि बिफोर बरिंग द निएंडरथल रिमेन्स दे फर्स्ट जो स्किन आउट करते थे उनकी बॉडी से स्किन को पहले हटा देते थे तब वो बरी करते थे इसलिए एक्सकार्नेशन प्रैक्टिस भी पाई गई है. द बचर्ड और ब्रोकन ह्यूमन बोन्स give the evidence of cannibalism and excarnation on the Mostrian sites. डॉडोगने वैली जो या डॉडोगने डिस्ट्रिक्ट है वो जो क्यों वहाँ पर ये फ्लोरिश किए इतना ट्रेडिशंस और बाकी अदर साइट्स पे क्यों नहीं फ्लोरिश किए इसका रीज़न ये है कि इसका यूनिक जियोग्राफिकल सेटिंग है. डॉडोगने हैज अ यूनिक जियोग्राफिकल सेटिंग ऑफ लो हिल्स एंड स्ट्रीम्स and numerous caves and rock shelters provide shelter for man at that time. तो इसलिए उनको वहाँ से इधर उधर जाना नहीं पड़ा और आसपास ही जंगलों से या उनको वेजिटेशन मिल जाता रहा होगा जंगली जानवर मिल जाते रहे होंगे हंटिंग के लिए. तो इसलिए वो केव साइट्स और रॉक शेल्टर्स उनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे और आसपास हिल्स और स्ट्रीम्स थी जिस वजह से डॉडोगने में बहुत लंबे समय तक मोस्ट्रियन ट्रेडिशन जो है फ्लरिश किया. बाकी अदर साइट्स में ऐसी यूनिक कंडीशंस नहीं थी जिस वजह से जो ट्रेडिशंस थे मध्यप्राच्य कल्चर के वो उतना फ्लरिश नहीं किए. जो फर्स्ट डिटेल टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ न्यूमरस assemblages of French Mostrian was made by Francois Bordes and his research team. तो जो मॉस्ट्रियन ट्रेडिशन है फ्रेंच मॉस्ट्रियन उसका जो पहला स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके बहुत सारे न्यूमरस जो असेंबलेजेस मिले हैं टूल्स के उन सब का टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन किया फ्रैंकोइस बोर्ड्स ने और उनकी रिसर्च टीम ने उनके कलीग्स ने. एंड बोर्ड्स आइडेंटिफाई द असेंबलेजेस इन 5 मेन ग्रुप्स नेमली मॉस्ट्रियन ऑफ एचुलियन ट्रेडिशन, क्विना, फेरासे, टिपिकल एंड टेंटिकुलेट. तो उन्होंने 5 मेन ग्रुप में पहले रखा मॉस्ट्रियन ऑफ एचुलियन, क्विना फेरासे, टिपिकल एंड टेंटिकुलेट. बाद में इन्हीं को 4 वेराइटीज में अरेंज किया गया है. मॉस्ट्रियन कॉम्प्लेक्स जैसा कि आपको टेक्स्ट बुक्स में भी मिलेगा कि 4 वेराइटीज मॉस्ट्रियन की हैं. पहला है और इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 4 वेराइटीज मिलती है मॉस्ट्रियन कल्चर में और इसीलिए इसको मॉस्ट्रियन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. इज नोन एज मॉस्ट्रियन कॉम्प्लेक्स and it consists of 4 varieties because of the
various findings of the various kinds of tools from these four sites, and that is why it's known as Mostrian complex, namely Mostrian of Charantian. क्वीना फेरासे को एक करके यहाँ पे चैरेंटियन के अंदर रखा गया है, ग्रुप किया गया है. देन मोस्ट्रियन ऑफ एचुलियन, यहाँ एचुलियन टाइप ऑफ टूल्स एंड एक्सेस मिलने की वजह से इसको मोस्ट्रियन ऑफ एचुलियन कर दिया गया. देन टिपिकल मोस्ट्रियन, जिसमें कि प्योर मिडिल पैलेटिक टाइप ऑफ टूल्स, इसमें साइड स्क्रैपर्स, पॉइंट, पोरस ब्यूरीज मिले, इसलिए इसको टिपिकल मोस्ट्रियन कहा गया. एंड देन मोस्ट्रियन ऑफ डेंटिकुलेट्स, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टूल्स वेयर डेंटिकुलेट्स एंड नॉचेस, that is why it is known as Mostrian of denticulates. So this was the Ward's and his research teams का वर्क था, जिसके अनुसार उन्होंने चार मेजर वेराइटीज में Mostrian ट्रेडिशंस को ग्रुप किया और इसको Mostrian कॉम्प्लेक्स कहते हैं. First, the Mostrian of Charantian tradition. It was the site was Charante, France, and the evidences which were found from this site are predominance of side scrapers, means large number of side scrapers were found from Charante's site, and access denticulates were rare, and notched flags occur in the good number. Quina scrapers show fish scale retouching on their surface made by Quina technique. तो यहाँ पर क्विना स्क्रैपर्स मिलते हैं चरांटे साइट में. और चरांटे जो ट्रेडिशन है चरांटियन, इसको फर्दर टू ग्रुप में बांटा गया, टू सब ग्रुप्स में बांटा गया, क्विना ट्रेडिशन एंड फेरासे ट्रेडिशन. फर्दर इट इज ग्रुप्ड इनटू डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स. दिस मोस्ट्रिन ऑफ चरांटियन is divided into two subgroups, Quina and Ferase traditions. Quina tradition, also known as Charantian atypic or Charantian oriental, and the site is La Quina. Major location is Charante, while the site is La Quina, specific site is La Quina, and the evidences which are found are Quina scrapers. Quina scrapers इसलिए कहा गया क्योंकि Quina site के नाम पर Quina scrapers कहा गया. और इनकी खासियत क्या थी, इनकी यूनिकनेस क्या है कि here the scrapers are found with the fish scale retouching on their surface. Means fish like scaling scales जो यहाँ पर पाए गए उनके सरफेस पर, और इसीलिए इसको क्विना स्क्रैपर्स कहते हैं, फिश स्केल रिटचिंग के साथ, जो बाकी स्क्रैपर से अलग दिखते हैं. लेवलवाइज फ्लेक्स आर एब्सेंट, लेवलवाइज पॉइंट्स आर प्रेजेंट. तो फ्लेक्स यहाँ पर एब्सेंट है, कुछ लेवलाइजिंग पॉइंट्स प्रेजेंट है, और जबकि यहाँ पर जब लेवलाइज फ्लेक्स प्रेजेंट पाए जाते हैं, मीन्स ला फेरा से जो दूसरी साइट है वो यहाँ पर लेवलाइज फ्लेक्स प्रेजेंट है. द लेवलाइज फ्लेक्स आर प्रेजेंट इन ला फेरा से व्हाइल एब्सेंट इन La Quina. Deliberate pavement or the flooring is found in the habitation area. तो habitation structure यहाँ पर पाया जाता है जिसमें कि deliberate pavement पाया गया है, flooring पाई गई है, made by the Neanderthal man. The next is the typical Mousterian, and the evidences are large percentage of side scrapers less than Charantian. Means जो predominance था side scrapers का Charantian में, उससे थोड़ा कम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी साइड स्क्रैपर्स बहुत अधिक संख्या में पाए गए. Some points were also found, back knives, denticulates, hand axes are rare but levelized flakes are present. तो यहाँ पर levelized flakes पाए जा रहे हैं, कुछ hand axes हैं, और most of the tools are point side scrapers, back knives and denticulates. Then third is the Mostrian of denticulate, and here the predominant frequency of denticulates and notches are found. तो यहाँ पर डेंटिकुलेट्स एंड नॉचेस ज्यादा पाए जा रहे हैं, जिसमें हैंड एक्सेस एंड बैक नाइव्स आर रेयर. देन मोस्ट्रियन ऑफ एचुलियन ट्रेडिशन आता है, एंड इट वाज द यंगेस्ट ट्रेडिशन ऑफ ऑल फोर. मींस जो चार वेराइटीज में यंगेस्ट है मोस्ट्रियन ऑफ एचुलियन ट्रेडिशन. और ये यहाँ पर टिपिकल मिडिल पैलेटिक हैंड एक्सेस, जिसमें कॉर्डेट्स कहे जाते हैं, वो पाए जाते हैं. टिल साइड्स का पास बैक नाइव, डेंटिकुलेट, जो जैसा कि ऑलरेडी पहले के ट्रेडिशंस में है वो यहाँ पर भी पाया जा रहा है. टिपिकल मोस्ट्रियन से ज़्यादा है संख्या यहाँ पर साइड स्क्रैपर्स, बैक नाइव्स की और डेंटिकुलेट्स की. इसमें भी दो टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी ऑफ मोस्ट्रियन ऑफ एचुलियन. ड्यूरिंग बूम 1 टाइप ए है, टाइप बी ड्यूरिंग बूम 2 to 3. ये ओल्डर है टाइप ए, एंड डिक्रीज इन हैंड एक्स विद डिक्रीज इन hand edge with decrease in side scrapers, while there is increase in back knives. तो बैक नाइव्स में इंक्रीज होता जा रहा है. जैसे जैसे हम लेट ट्रेडिशंस की तरफ बढ़ते हैं तो बैक नाइव्स बढ़ रहा है, पर साइड स्क्रैपर्स में और हैंड एक्स में कमी आ रही है.
टूल्स देख सकते हैं। मिडिल पैलोथिक या मॉस्ट्रियन ट्रेडिशन के जो टूल्स हैं उसमें स्क्रैपर्स हैं, बोन पॉइंट्स हैं, और ब्यूरिंग्स हैं, बोरर्स हैं, लीप पॉइंट्स हैं, और कुछ लेवलाइजियन कोर हैं, लेवलाइजियन फ्लेक टूल्स हैं। तो इस तरह बहुत सारे टूल्स जो हैं जो भी पाए गए उस समय मिडिल पैलोथिक के समय वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये स्क्रैपर्स जो होते हैं वो पीलिंग ऑफ स्किन या कटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये स्क्रैपर्स इस तरह के टूल बनाए गए होंगे जिसमें कि रिटचिंग या फ्लेकिंग करके फ्लेक्स पे डिटैच, एंड देन दिस टाइप ऑफ स्क्रैपर इज मेड। देन बोन पॉइंट्स बनाए गए होंगे, जो लॉन्ग बोन से ही पॉइंट्स बना दिए गए तो बोन पॉइंट्स बन गए। इस तरह लीफ शेड पॉइंट्स वेर आल्सो फाउंड फ्रॉम Mostrian tradition and other sites. लीफ शेप्ड पॉइंट जो कि ऊपर और नीचे यहाँ पर पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते थे। इसी तरह ब्यूरिंग्स बनाए गए जो कि ट्रांसवर्स ब्यूरिंग्स बनाए गए जिसमें कि एक ट्रांसवर्स एज होता था पहला। नॉचेस नॉचेस जहाँ पर एक यहाँ पे कर्व्ड सरफेस यहाँ पर था और ये जो है नॉचेस बनाए गए। इसी तरह अगर अल्टरनेट जो है वो कॉन्टिन्यूटी में अगर नॉचेस बनाए जाए किसी भी स्टोन पे तो वो डेंटिकुलेट का शेप ले लेता है। तो इसको डेंटिकुलेट मीन्स टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए गए किसी भी टूल में जो स्क्रैपिंग या कटिंग के लिए यूज किए गए तो इसको हम डेंटिकुलेट्स कहते हैं। और इसी तरह नाइफ का ओरिजिन हुआ बैक्ड नाइफ्स का उन्होंने बनाया कि जिसमें एक बैकिंग थी नाइफ में, और अपर सरफेस एक लेटरल सरफेस जो है कटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था, और जो है जो शार्प एजेस होते थे और दूसरा जो है यहाँ पर होल्ड करने के लिए होता था। तो इस तरह बहुत सारे टूल्स जो है वो हमको मिडिल पैलोथिक कल्चर से मिलते हैं, और कुछ टार्टवाइजियन कोर भी मिलते हैं जो लेवलाइजियन टेक्निक से बनाए गए जिसमें ऑल अराउंड द बॉर्डर ये फ्लैग्स डिटैच किए गए। एंड यहाँ पर एक प्रिपेयर्ड कोर तैयार किया जाता था बिफोर डिटैचिंग द फ्लैग, और एक इसीलिए इसको प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक भी कहते हैं। और यहाँ पर एक कोर जिसमें कि सब मार्क्ड मतलब रहता था पहले से और वो डिटैच किया जाता था फाइनल ब्लो से। तो इस तरह दीज आर द सम टूल्स ऑफ द मिडिल पैलोथिक कल्चर। देन कम्स द मिडिल पैलोथिक साइट्स एंड एविडेंसेस फ्रॉम यूरोप अदर देन फ्रेंच मॉन्स्टेरियन। मीन्स यहाँ पर जो फ्रेंच मॉन्स्टेरियन से हटकर दूसरी जो साइट्स मिली हमको वो कौन कौन सी हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, द साइट इज पिनहोल केव इन डर्बिशायर। Evidences are Leblois flakes, points, side scrapers and later show अपर पैराथिक टाइप जिसमें कि ब्लेड्स प्यूरेंस ये सब मिलते हैं। तो ये ग्रेट ब्रिटेन से पिन होल केव से हमको ये जो साइट है यहाँ से कुछ मिडिल पैराथिक टूल्स मिलते हैं। देन बेल्जियम से, नॉर्थ बेल्जियम से स्मॉल एचुलियन हैंड एक्सेस। स्पेन की जो दो साइट्स हैं डेविल टॉवर शो एंड गोरहम केव। डेविल टॉवर शो से वेल फिनिश लेब्राइजन पॉइंट्स मिलती है जिसमें कि हमको फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखता है कि फ्रेंच मॉन्स्टेरियन का ही कुछ यहाँ पर असर हुआ होगा या माइग्रेशन या कॉन्टैक्ट में आए होंगे। तो इस तरह की साइट्स यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर भी मिलते हैं। देन गोरहम्स केव है जहाँ पर डिमिनुटिव टूल्स मिलते हैं, मीन्स वेरी स्मॉल टूल्स मिलते हैं, माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, और कुछ स्मॉल फ्लेक क्लीवर्स मिलते हैं जिसको कि वेस्कोनियन कहा बोट्स में। नॉर्थ अफ्रीका का इन्फ्लुएंस यहाँ पर लगता है, पता लगता है कि यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका का इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि स्पेन काफी करीब है इस मैप में नॉर्थ अफ्रीका से, तो इसलिए नॉर्थ अफ्रीका का इन्फ्लुएंस यहाँ पर शो होता है इनके टूल्स में। देन जर्मनी से जो हमें जो मोस्ट मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक टूल मिला है दैट इज द ब्लाड्सपिजन लीफ पॉइंट मिला है जो कि बाइफेशियल लीफ पॉइंट्स है, दैट इज नोन एज ब्लाड्सपिजन का जो मीनिंग है जर्मन वो बाइफेशियल लीफ पॉइंट्स होने की वजह से ब्लाड्सपिजन कहते हैं इसको। और यहाँ पर जो बहुत सारी साइट्स हैं, 7-8 साइट्स हैं जिसमें कि लैरिंजन जो है नॉर्थ जर्मनी की साइट है जिसमें साइट्स के पर लेवलाइज पॉइंट्स एंड 2.5 मीटर लॉन्ग वुडन लैंस मिला है जिसमें कि और उसमें लगता है कि वहाँ पे फायर से हार्डन किया गया हो पॉइंट को, ऐसा कुछ पता लगता है। इसी तरह अल्टमोल वैली जो है वो दूसरी साइट है जो कि
रिजनबर्ग एंड ऑक्सबर्ग के स्मॉल एरिया है उसके बीच में है साउथ वेस्ट जर्मनी से, यहाँ पर ब्लैट्सफिजन मिलता है विद साइड स्क्रैपर्स। देन ब्लॉक स्टीन थर्ड है साउथ जर्मनी से, जहाँ पर फ्लैट माइकोकियन स्मॉल मोस्टियन टाइप ऑफ हैंड एक्सिस साइड स्क्रैपर ब्लैट्सफिजन मिलते हैं, and here we get no evidence of levelized technique. Then Taubeck and Wiemer site है along Soleb River in East Germany. Here also we find the skyscrapers, and here the points are double denticulate, means both side denticulate है वो, means teeth like structure दोनों साइड में पाए गए, notches means continuous notches are found, and that is known as Dacian points. एंटलर पिक्स एंड क्लब्स भी पाए गए थे। एरिंगस्टॉप एक साइट है जहाँ पर डबल पॉइंट शोल्डर पॉइंट्स एंड नो हैंड एक्सेस आर फाउंड। देन सालजीटर लेवेंस्टेड है, ये नॉर्थ जर्मनी में 48,300 ईयर्स ओल्ड है, और यहाँ पर कुछ क्रूड हैंड एक्सेस पाए गए हैं, साइज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर broad. On the other hand, beautiful levelized side reaters, side scrapers were found. Mammoth rib points and worked antlers were also found, and it represents the late meeting point of the Central European Mycokian with the Northern late Acheulean. तो इस तरह ये सारे साइट्स हैं जर्मनी से, और भी साइट्स हैं। नेक्स्ट साइट इज कोनिक्साउ, काक्सटीन एंड बावर। 3 साइड्स हैं, और ये अपर एचुलिन हैंड एक्सेस यहाँ पे मिलते हैं, लेवलाइजिंग पॉइंट्स मिलता है। थिक ब्लेड नाइव्स, ब्यूरिन्स, चॉपिंग टूल्स वर फाउंड फ्रॉम दिस साइड्स। एंड देन सेसल फेल्स ग्रोटे, ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है क्योंकि यहाँ पे पिग्मालिथेन बहुत ही थिन और बाइफिशियल स्टोन फ्रैगमेंट्स मिले हैं जो कि माइक्रोलिथिक प्लेग टूल्स माने जा सकते हैं। बाद में अपर पैलेolithic में और मेसोलिथिक पीरियड में हमको खासकर मेसोलिथिक टूल के मींस पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक टूल है माइक्रोलिथिक पर। सेसल फेल्स ग्रोटे से भी हमको माइक्रोलिथिक प्लेग टूल्स मिले हैं, और जिनको कि प्रोफेसर फ्रोइड ने पिग्मालिथेन कहा, who excavated this site. This site was excavated by Professor Freund and Freund, and he called these microlithic plate tools and thin bifacial stone fragments as pygmalithene, means very small stones. Pygma means small, diminutive, and lithium means stone. And who excavated, and its side slippers were also found. Then Hungary, Southeast Europe, here 2 sites are found, Stata and Erd. टाटा में जो है पेबल टूल्स, चॉपर चॉपिंग टूल, साइड स्क्रैपर पॉइंट्स, मीन जितने भी ये मिडिल पैथिक टूल्स होते हैं वो सभी मिले, लेकिन यहाँ पे कुछ कोर टूल्स भी मिलते हैं, पेबल टूल्स और ये कोर टूल्स, चॉपर चॉपिंग टूल्स भी मिलते हैं अलॉन्ग विद द मिडिल पैथिक टूल्स। और वेरी स्मॉल टूल्स भी मिलते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर तक की लेंथ के हैं, जिसमें डोमिनेटिव टूल्स कहते हैं या माइक्रोलिथिक मिडिल पैथिक कह सकते हैं। ये हंगरी के टाटा से मिला है। देन अर्थ से हैंड एक्सेस एब्सेंट पाए गए, लेकिन चॉपर चॉपिंग टूल्स यहाँ पर भी मिलते हैं, और साइज ऑफ टूल्स यहाँ पर इन्हीं की तरह है, टाटा में जो पाएगा 2 to 6 सेंटीमीटर लेंथ में। तो पर ये स्टैंडर्ड टूल्स नहीं है जो अर्थ से मिले हैं, उन्हें दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स विद एज कंपेयर टू द टाटा, एंड लेस नंबर ऑफ लेवलाइजिंग टूल्स। देन बाल्कन से जो साउथ ईस्ट यूरोप में है, यहाँ से जो एविडेंस मिलते हैं यहाँ पे भी माइक्रोलिथिक मिडिल पैथिक मिलता है। तो जर्मनी की कुछ साइड से लेकर हंगरी, बाल्कन्स, इन सभी में हमको माइक्रोलिथिक टूल्स मिलते हैं। बाल्कन्स, हंगरी और जर्मनी की 1-2 साइड से, जिसमें कि सेसल फेल्स ग्रोटे है, और इसके पहले भी 1-2 साइड थी जिनमें कि हमको ये मिलते हैं माइक्रोलिथिक टूल्स। हंगरी में भी हमको माइक्रोलिथिक टूल्स मिल रहा है टाटा एंड अर्थ से, और बाल्कन्स में भी माइक्रोलिथिक टूल्स मिल रहे हैं। साउथ ईस्ट यूरोप में बाल्कन्स, जहाँ पे माइक्रोलिथिक मिडिल पैथिक माना जाता है। देन इटली, दैट इज इन वेस्ट यूरोप और कैन बी इन साउथ वेस्ट यूरोप। साइट है एपूला साउथ इटली में, और यहाँ पे पेबल प्लेग टूल्स, वी गेट द पेबल प्लेग टूल्स लेवलाइज्ड पॉइंट सिमिलर टू ग्रीक मिडिल पैलेथिक। तो ग्रीक मिडिल पैलेथिक से ही मिलते जुलते यहाँ पर टूल्स मिले हैं। देन ऑस्ट्रिया से आते हैं, और ऑस्ट्रिया में 2 साइट्स मिली है, गुडेनस केव एंड साल्सोफेन, एंड द स्क्रैपर्स, साइड स्क्रैपर जिसमें है पॉइंट्स और broken pieces of Bladspizen were found, hand axes. Then Salsofen से hollow pieces of long bones with holes,
ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। प्रिमिटिव फ्लूट्स यहाँ पर मानी जाती है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ प्रिमिटिव फ्लूट्स आर फाउंड फ्रॉम साल्जोफिन। साल्जोफिन से लॉन्ग बोन्स में होल्स पाए गए और जो कि माना जाता है कि अर्ली जो बांसुरी रही होगी वो इस तरह बनाई गई होगी। देन चेकोस्लोवाकिया जो कि सेंट्रल यूरोप में है, यहाँ पर बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि मोराविया जो लोकेशन है वहाँ पर कुलना, सिपका, बाइस्काला साइट है। और यहाँ पर भी यही सारे टूल्स जो कि मिडिल पैर्थी के साइड से हैंड एक्सिस पॉइंट्स पाए गए हैं। एक आध साइड में अपर पैर्थी टूल्स भी पाए गए हैं और बाइस्काला में मैसिव चॉपर चॉपिंग टूल्स पाए गए हैं। देन जो दूसरा लैंड है दैट इज स्लोवाकिया ऑफ चेकोस्लोवाकिया के स्लोवाकिया में नोवे मेस्ट्रो और गेनोवेस और फ्रॉम्स्ट, ये 3 साइट हैं और इन तीनों में जो है लेवलाइजियन प्लेग टूल्स और साइड स्क्रैपर पॉइंट्स रीटा प्लेग्स पाए गए हैं। तो इस तरह these are the various sites of the Europe other than French Monastery. Then Yugoslavia जहाँ पे diminutive tools पाए गए, again here diminutive tools are found, means very small microtic tools are found. Then Greece में जो ग्रीक पेनिसुला है यहाँ पे कोकिनोफिलोस और एस्ट्रोचालिको, यहाँ पर भी लेवलाइजन प्लेग, साइड स्क्रैपर पॉइंट्स, स्मॉल ब्लैक प्लेग नाइफ्स, these are found. देन बुल्गारिया बाचोकीरो, यहाँ पर भी लेवलाइजन टूल्स, स्क्रैपर्स और चॉपर चॉपिंग टूल्स भी मिलते हैं। रोमानिया की 2 साइट्स हैं, लार्डम और ओहावा पोनोर, और यहाँ पर जो है लार्डम से भी तो कोई भी लेवलाइजन टाइप्स नहीं मिल रहे, लेकिन ओहावा पोनोर से जो है लेवलाइजन टाइप्स तो नहीं है, लेकिन फ्रेंच मॉन्स्ट्रियन से सिमिलर एमिग्डोलॉइड हेंटेक्सिस आर फाउंड। Then South Russia, north of Black Sea, and the valley is Dnester Valley. Dnester Valley से ये जो यहाँ पर मिले हैं different sites, these are found in Dnester Valley. Then यहाँ पर Volgograd है एक site जो Volga Valley between river Volga and river Kuban से मिला है, और ये evidences यहाँ पर chopping tools मिले हैं, chopper chopping tools and no levelized place. Then Ilskaya and Strskoya Kuban Valley में यहाँ पर लेवलाइजन पॉइंट्स बहुत संख्या में मिले हैं और कुछ ब्लड स्पीजन हैंड एक्सिस मिले हैं। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है ये मोलोडोवा ग्रुप साइट है, और ये इम्पॉर्टेंट साइट है मोलोडोवा ग्रुप साइट रशिया की, और यहाँ पर मोलोडोवा कॉम्प्लेक्स मिला है, और ये M1 और M5 दो हैं, मीन्स मोलोडोवा 1 एंड मोलोडोवा 5, जिसमें लेवल 4 एंड 5 एंड लेवल 11 एंड 12 में कुछ मोलोडोवा जो है टूल्स मीन्स मिडिल पैराथिक टूल्स मिले हैं हाई परफेक्शन के, और एविडेंसेस जो मिले हैं वो हाई डिग्री ऑफ लेवलाइजिंग परफेक्शन, ओवर अरेंजमेंट ऑफ मैमथ बोन और लिविंग फ्लोर। तो यहाँ पर मैमथ बोन लिविंग फ्लोर में अरेंज की गई यहाँ पर मिले हैं कुछ मीन्स एबिटेशन स्ट्रक्चर का एविडेंस यहाँ पर। फायर हर्स भी मिले हैं, मीन्स वो कुकिंग करते रहे होंगे या कोई चीज मीन्स फायर में गरम करते रहो, वेदर इज टूल्स और इट इज फ्रेश। एंड देन रेड ऑकरे पीसेस भी मिले हैं अलॉन्ग विद सम स्टोन टूल्स। तो इस तरह रशिया के ये जो मोलोडोवा ग्रुप साइट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स। इन साउथ क्रीमिया में जो साइट्स हैं कि ओबा एंड वोल्ची ग्रोट, यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं दीज आर आल्सो सेम एविडेंसेस। एंड स्लीपर साइड स्लीपर्स कुछ पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक टूल्स जैसे बोरर ब्यूरिंग्स एंड बैग नाइफ्स आर आल्सो फाउंड। टाइक पॉइंट्स मिला है। देन जो साइड्स हैं स्टारोसेल, यहाँ पर फ्लेक्स मिले हैं जो कि ब्लड स्पीजन के साथ है। तो कंक्लूड करते हैं कि जो लेवलाइजन फ्लेकिंग टेक्निक इट्स कॉमन इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोप एंड बाइफेशियल टाइप्स जिसमें कि लीफ पॉइंट्स ब्लड स्पीजन कैरेक्टरिस्टिक टूल है ऑफ ईस्टर्न यूरोप। Moravia shows influence of southwest France. Black species evolved during the late Middle Paleolithic on latitude 46 डिग्री नॉर्थ में ये जो ब्लड स्पीजन इवॉल्व हुए, और ऐसा माना जाता है कि शोज अ गुड मतलब इंडिकेटर ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड कल्चर माइग्रेशन। तो इस लैटिट्यूड के नीचे जितने भी रहे होंगे उसमें ब्लड स्पीजन जो है पाए गए होंगे, और इस तरह हमें इंडिकेशन मिलता है ये कल्चर कॉन्टैक्ट एंड कल्चर माइग्रेशन हुआ होगा।
लोग एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे और उस तरह जो टूल्स का जो है डिफ्यूजन हुआ होगा, टूल मेकिंग टेक्निक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक टूल्स का डिफ्यूजन हुआ होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस। इसीलिए सिमिलर टूल्स जो है कुछ साइट्स में हमें मिलते हैं फ्रॉम वेरियस लोकेशंस ऑफ द यूरोप। देन मिडिल पैलेथिक फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका से भी जो हमको मिले हैं टूल्स या जो ट्रेडिशंस या कल्चर्स मिले हैं, और माना जाता है कि इन्हीं का जो है यहाँ से अफ्रीका से भी कुछ लोग जब माइग्रेट किए होंगे एशिया और यूरोप में, तो जो है सेम कल्चरल ट्रेट्स जो है वहाँ पर पाए गए होंगे, टूल्स भी वहाँ से सिमिलर टूल्स लोगों ने बनाए होंगे। और कुछ का मानना, एक थ्योरी कहती है कि कल्चर कॉन्टैक्ट या कल्चर माइग्रेशन हुआ, जबकि दूसरी थ्योरी कहती है कि इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन हुआ है यूरोप में। तो यूरोप में क्योंकि जो स्पीशीज थी वो नियंडरथल मैन थी, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन हुआ कल्चर का, जबकि एशिया में और कुछ पार्ट ऑफ यूरोप में माना जाता है कि अफ्रीकन लोग जब गए तो वहाँ से उनकी जो टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी थी वो डिफ्यूज हुई इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया। तो नॉर्थ अफ्रीका में एटीरियन कल्चर है। नॉर्थ अफ्रीका में जो इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कल्चर ट्रेडिशन फाउंड, दैट इज एटीरियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, and it is also found from other sites, Oman in Arab, Thar Desert, India, Maghrib, Sahara and Sahara Eritrean कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ईस्टर्न एटीरियन कल्चर इज फाउंड। Then time period is 1,50,000 to 1,30,000 or 1,30,000 to 20,000 years ago। तो 20,000 years तक ही एटीरियन कल्चर पाया गया in different parts of the Africa, Arab and Asia, some parts of the Asia. साइट्स इज बीर एल एथिर, एंड बीर एल एथिर के नाम पर ही इसका नाम एटीरियन कल्चर रखा गया है। इट इज द साइट इन साउथ ऑफ एनाबा इन ट्यूनीशिया, नॉर्थ अफ्रीका, एंड द अदर साइट्स ऑफ एटीरियन कल्चर आर Dar es Sultan 1 and Dar es Sultan 5 cave in Dar es Sultan 2 cave in Morocco. Then evidences are tanked or pedunculated tools, means यहाँ पर stemmed tools पाए गए हैं, stemmed leaf मीन्स एरो हेड्स और स्पीयर हेड्स पाए गए हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक टूल है एटीरियन कल्चर की, तो इस तरह के टूल्स जो है ये एटीरियन कल्चर में सबसे पहले पाए गए। स्पीयर हेड्स, एरो हेड्स, स्टेम्ड जो है वो टैंक्ड टूल्स पाए गए, और ये हाफ्टिंग का ये शो करते हैं कि पहला जो हाफ्टिंग का शुरुआत हुई, बिगनिंग ऑफ हाफ्टिंग प्रैक्टिस दैट वाज फ्रॉम एटीरियन कल्चर माना जा सकता है। तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ हाफ्टिंग टूल एंड टैंक्ड एंड पेडंकुलेटेड टूल्स is found from Etruscan culture, emergence of bow and arrow technique, जो कि इस तरह एरो हेड्स बनाकर वो वुडन किसी रॉड में हाफ्टिंग करते थे और इसको एरो के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो बो एंड एरो टेक्निक की शुरुआत हुई, एंड 90,000 years old bone technology from Dar es Sultan 1 cave is found in Morocco। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जो यहाँ से मिले हैं एटीरियन कल्चर से। यहाँ पे बाइफेशियल लीफ से पॉइंट्स मिली हैं, बोन पॉइंट्स मिले हैं, और ये टैंक्ड पॉइंट्स मिले हैं, टैंक स्क्वायर हेड्स मिले हैं, शेल्स पर कुछ वर्क किया है, मींस परफोरेटेड शेल्स मिले हैं। तो इस तरह दीज आर द वेरियस एविडेंसेस फ्रॉम एटीरियन कल्चर। देन ईस्ट अफ्रीका में, ये तो नॉर्थ अफ्रीका का है, ईस्ट अफ्रीका में सांगोन कल्चर है, सांगो बे साइड से, इसीलिए इसका नाम सांगोन कल्चर हुआ, एंड इज इन युगांडा, एंड द टाइम इज 1,30,000 to 10,000 years ago। एविडेंस एचुलियन टूल्स, बोन एंड एंटलर पिक्स। देन सेंट्रल एशिया में इराक, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट इज शानीदार केव, जो कि इराक में है, और यहाँ से हमको मिलते हैं वाइल्ड फ्लावर पॉलन ग्रेन्स के साथ कुछ नियंडरथल रिमेन्स। तो नियंडरथल रिमेन्स विद अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड फ्लावर पॉलन ग्रेन्स, एंड दैट शोज देयर इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस थ्रू द फ्लावर्स। तो डेड पर्सन के लिए जो उनके इमोशंस होते थे वो ये शो करते थे वाइल्ड फ्लावर पॉलन ग्रेन्स डेड बॉडीज के साथ। जब वो बरी करते थे तो वो उस समय बरियल प्रैक्टिसेस में ऐसा वो प्रैक्टिस करते थे कि वाइल्ड फ्लावर पॉलन ग्रेन्स भी रखा करते थे। तो इस तरह ये बिलीव इन आफ्टर लाइफ एंड देयर इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस विद द डेड पर्सन इज शोन फ्रॉम दिस साइट शानीदार केव। And then the next cave site is Tabun
In Mount Carmel Cave, Nahal Memorial Natural Reserve, Israel. And here the Neanderthal skull is found with the Lemurian plate tools, scrappers, hand axes, spearheads and arrowheads. Then Tacitus Cave जो कि उज्बेकिस्तान में है, it shares the boundary with the Central Asian countries. The उज्बेकिस्तान जो रशिया में था पहले, बाद में इंडिपेंडेंट ये कंट्री हो गया अलग, और ये इसकी बाउंड्रीज जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को टच करती है। तो इस तरह टेसिक टास्क केव भी एक इम्पोर्टेंट साइट है सेंट्रल एशिया से, जो कि यहाँ पर नियंत्रल के स्केलेटन मिलता है। 1938 में इसको डिस्कवर किया गया, एंड इन केव इन द विस्टानु बसुंताओ माउंटेन रेंज में। तो बसुंताओ माउंटेन रेंज में नियंत्रल स्केलेटन जो है वो डिस्कवर किया गया इन 1938। So this was all about the Middle Paleolithic culture from Asia, Africa and Europe. Here in this map, there are some North African hominid sites, और यहाँ पर एटीरियन कल्चर के आपको साइट्स दिखेंगे। जो भी रेड से हैं वो सब एटीरियन कल्चर की साइट्स हैं, जैसे बिर एटच जिसके नाम पर एटीरियन पड़ा। और फिर यहाँ पर दार सुल्तान है, दार सुल्तान 1 एंड दार सुल्तान 2। तो इस तरह these are the North African hominid sites, and here the sites from Europe and Asia. यहाँ पे लिमोस्टियर, लाफिना, लाफेरासे, एल्सिफ्रॉन, जिब्राल्टर एंड न्यू कैप्रिना एंड लॉचेबल ऑक्सेंस, एंड इन एशिया शानिदा, टाबून, टेसिटास। तो इस तरह these are the various sites from Africa, Europe and Asia of Middle Paleolithic culture. Thank you very much. Please like, share and subscribe this video. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मीट योर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।